ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 50% ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರು ನೀವೇನಿದ್ರಿ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಊರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ತಾಲೂಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. Mr. Dushyant Kumar Gautam, who is present, Rajya Sabha member, and previously he was National SC Morcha President for 2 times, and previously he was our National Vice President once. At present, he is the in charge of Punjab, Chhattisgarh and Uttarakhand, BJP in charge, and also he is the in charge of our National Human Being Cell. He is here to address the gathering. I welcome Mr. Dushyant Kumar Gautam ji for this occasion. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿ, ನಾನಾ ಪಂಗಡ, ನಾನಾ ವರ್ಗಗಳು, ನಾನಾ ಭಾಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು, ಆ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾನಾ ಪಂಗಡದ ಜಾತಿಗಳನ್ನ, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ. बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के बीच में आना होता है, मिलना होता है, क्योंकि आप एक ऐसे विशिष्ट ताल्लुकात रखते हैं जो लोगों का मन बनाते हैं कि देश और समाज में क्या चल रहा है. आपकी फॉलोइंग भी ज्यादा है.
मेरी बात समझ में आ रही है ना हिंदी? मैंने देखा जब भारत माता की जय बोला सबने जय बोली, मैं समझा हिंदी आती है इसलिए मैं हिंदी। तो इसलिए आपसे बात करना ये नहीं है कि आप 100 हैं, मैं मान के चलता हूं कि आप 100 नहीं 100,000 हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति हजारों लोगों से मिलता है, बात करता है। इसलिए आपके सामने हमें अपना पक्ष रखना बहुत आवश्यक होता है। समय समय पर बैठकों में जाता हूं, मिलता हूं लोगों से, IAS होते हैं, IPS होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उनके मन में बैठना चाहिए कि कैसा देश चाहिए, कैसा समाज चाहिए, मुझे किस परिदृश्य में रहना है। आज आप अपने लिए भविष्य के लिए मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, प्रोफेसर बना रहे हैं। क्या उनके आने वाले के लिए वातावरण जो बनेगा उसके लिए सरकार क्या कर रही है? अपने लिए सब कुछ आदमी बना सकता है, इसलिए इंटेलेक्चुअलों का यह सोचना बहुत जरूरी है कि देश में चलने वाली सरकार किस प्रकार से चल रही है। बेरोजगारी है, लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं महिलाओं को और गरीबों और बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। बैंकों को कहा गया सभी को आप व्यवसायिक बनाइए, इनको 50,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख का लोन इनको दीजिएगा ताकि ये इंडस्ट्रीज लगा सके, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, रेहड़ी खोमचा लगा सके, ताकि एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को भी रोजगार देगा। ये नौकरी मांगने मेरे पास नहीं आएंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। सरकारी नौकरियों की सीमित होती है, कुछ सीमा होती है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था स्वच्छ भारत। कभी देखा है? मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल से कहीं ज्यादा एक सामाजिक संगठन है। हम राजनीति नहीं करते। आपने देखा है किसी प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाते हुए? देश के प्रधानमंत्री ने कहा मेरा देश गंदा है, मेरे देश को स्वच्छ करना है, जनता को बीमारी से बचाना है, तो मुझे ही कदम उठाना पड़ेगा। स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत। और यही नहीं, एक एक कदम पे हमने जन धन का खाता अकाउंट खोला, 35 करोड़ लोगों को बैंक में अकाउंट खोला। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंक का, लोगों को लग रहा था बैंक का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जनता का आना जाना खुल जाएगा, लेकिन मैंने देखा पूरे जीवन के अंदर 2014 से पहले बैंक के अंदर ब्रीफकेस लेकर जाने वाले लोग जाते थे, बस कोई नहीं जाता था। गरीबों ने खाता खोला, उसका बहुत लाभ हुआ। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि गरीब आदमी के लिए जो पैसा ऊपर से चलता था, जो उसके बराबर इक्वल बनाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी, जिसको राजीव गांधी ने उल्लेख किया, मैंने उल्लेख नहीं किया कि 15% नीचे आता है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री के जनधन खाते खोलने के बाद में हम 2,000 रुपये ऊपर डालते तो पूरे 2,000 नीचे जाते हैं, कोई एक पैसा बीच में से खाता नहीं है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें जाते ही कहा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, भाई साहब आप समय पे आ गए। हम तो समय पे आ गए, लेकिन गरीब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जाता है, उसको छोटे छोटे इलाज के लिए, छोटे छोटे टेस्ट के लिए 10 दिन का समय देते हैं, 15 दिन का समय देते हैं। उसका जीवन भी तो जीवन है। देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, गरीब आदमी 5 लाख का इलाज कहीं भी कैसे भी करा सकता है उसका परिवार, ये कार्ड दिया हमने उसको। आपने देखा होगा जिसके पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक के लिए हमने उसको सुरक्षित किया है। जनता का मनोबल बढ़ा है। हमने शौचालय दिए, गैस दिए, मकान दिए। हमने यही नहीं कहा कि यह मुसलमान रहता है इसको नहीं देना, ये हिंदू रहता है इसको नहीं देना, इसको देना इसको नहीं देना। हमने एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे खत्म किया, चाहे उसमें हिंदू रहता हो, मुस्लिम रहता हो, सिख रहता हो, ईसाई रहता हो। हमने कभी कोई भेद नहीं किया। हमने हेल्थ कार्ड बांटे तो एक तरफ से बांटने का काम किया, क्योंकि ये देश हमारा है, देश में रहने वाला नागरिक हमारा है। हम पक्षपात के साथ नहीं जी सकते, ये धरोहर है हमारी। अकेला पार्थ खड़ा है भारतवर्ष बचाने को, एक अकेला पार्थ खड़ा है भारतवर्ष बचाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। भ्रष्ट दुशासन शूर्पणखा ने माया जाल बिछाया है, भ्रष्टाचारी जितने कुनबे सबने हाथ मिलाया है।
समरभयंकर होने वाला आज दिखाई देता है। राष्ट्रीय धर्म का कीर्तन चारों ओर सुनाई देता है। फेंक रहे हैं सारे पासे जनता को भरमाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। चीन और नापाक चाहते भारत में अंधकार बढ़े, चीन और नापाक चाहते भारत में अंधकार बढ़े। हो कमजोर वहां की सत्ता, अपना फिर अधिकार बढ़े। आतंकवादी संगठनों का दुर्योधन का साथ मिला, भारत के जितने बैरी हैं सबको उसका हाथ मिला। सारे जैतन ताक में बैठे केवल उसे मिटाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। भोर का सूरज निकल चुका है, अंधकार घबराया है। कान्हा ने अपनी लीला में सबको आज फंसाया है। कौरव की सेना हारेगी, कौरव की सेना हारेगी, जनता साथ निभाएगी। अर्जुन की सेना बनकर नैया पार लगाएगी। ए महाभारत फिर होगा, ए महाभारत फिर होगा, हाहाकार मचाने को सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಆಗ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಡಕ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತಹ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? सारी समस्याएं हमने सोच की, समस्या को करेंगे। वो सुशील कुमार, तो मेरा एक आपसे अनुरोध है कि भाई केजीएफ जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध है बट एकदम नेग्लेक्टेड है, वहां से शहरों का पलायन हो रहा है, तो सारी जनता बैंगलोर जा रही है क्योंकि वहां पर कुछ भी अवसर नहीं है। बट केजीएफ का छोटा सा एक मैं आपको ये दे देता हूं कि भाई वहां पर लैंड रिसोर्स और इंटेलेक्चुअल रिसोर्स आप जो भी बोलो वो सारे हैं, सारे उपलब्ध है एक्सेप्ट पॉलिटिकल विल। अगर आप चाहे वहां की एक हॉस्पिटल है, उस सारे सुविधाएं उपलब्ध है। अगर आप एक थोड़ा सा उस पर एक कुछ भी अपना मन बढ़ाएंगे तो जरूर हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी सर। धन्यवाद। Now central government is planned to privatize our BML, sir. BML is the only public sector available in Kolar district, and BML is producing defense equipments, mining and construction, and rail and metro, sir. We are globally we are strong enough, and our employees and officers are well versed in technology and innovation, sir. Now our central government is planned to privatize our BML, sir. As a representative of BML employees, we are met 5 times to our defense minister and requested our defense minister to not to privatize BML. Now your interest of expression bidders are came and they are interested to buy the BML. BML land is around 103 acres in Bangalore, sir. The cost of that land is 4,000 to 5,000 crores. As per the EOI, the buyer can sell the land after 3 years. The cost is the 24 shares of BML is around 750 crores only, sir. Yes, sir. We are given several times. Now also we are giving one memorandum to your good sense, sir. Actually, our Srinaspura Taluk is one of the highest mango growing area in entire India actually. And we are having some industrial area in Narsapur, Kolar, Malur and all in Vemgal we are having industrial area. But we did not have any industrial area which is just 100 kilometers away from Bangalore. And earlier many politicians promised a coach factory in Srinaspura and it did not realize and it went away to some other district. So I request on behalf of Srinaspura Taluk to establish an industrial area and pulp industries in our area, sir, so that it will benefit the farmers in that area. Thank you, sir. Sir, thank you for coming and being with us, addressing us from Delhi. It is our good fortune to be with you. Sir, I represent our women from our district. Please give us employment opportunity for our women. We would like you to
recommend for us Solar Chakra for Kolar district and especially for KGF sir because I represent KGF. Solar Chakra for women of Kolar district. Thank you, sir.